Hello students, good morning. Beta, we have been studying the chapter Kings and Chronicles, and our sixth point was the Mughal court, in which we studied that what was the system of sitting for the courtiers and the ruler, and what were the rules. It was written that if the ruler sat once, no one could move from his position or go anywhere without permission. And the forms of salutation. There were several forms of salutation, but the Emperor Shah Jahan accepted two forms of salutation, which were Chahar Taslim and Jamin Bose. And we also studied that there was an ambassador of James I, whose name was Thomas Roe, who saluted the Emperor Jahangir in his European custom because he did not know that what was the system of salutation in Mughal court. That is why he saluted only in his customary way. Seeing this, all the courtiers and ruler was astonished. Now, in this point, we have to study something else. So, our next point is daily routine of the ruler. Yani, what was the daily routine of the ruler? What did he do at the beginning of the day? तो बेटा इसमें हमने दिया हुआ है The emperor began his day at sunrise with personal religious devotions or prayers and then appeared on a small balcony which was called a Jharokha, which was facing the east. Hmm. यानी सुबह की शुरुआत जो है वो अपनी मतलब सूर्योदय जब होता था तो धार्मिक पूजा पाठ जो भी उसका होता हो प्रार्थना के साथ करता था। उसके बाद उसके पैलेस में एक बालकनी बनी होती थी जिसे झरोखा भी कहा जाता था। उसमें वो पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता था है और बिलो द बालकनी इन फ्रंट ऑफ द बालकनी ऑन द ग्राउंड व्हाट वाज देयर a crowd of people uh, which people were included in that crowd. Those were soldiers, merchants, craft persons, peasants, women with sick children, etc. These were waited him for a view that was called darshan of emperor. मतलब बताइए कि when he stood up in the balcony, there were waiting numerous people only for see a glance of his ruler. वो अपने सम्राट की एक झलक पाने के लिए केवल, जैसे लोग कहते हैं ना, लोग मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, इन द सेम वे दे आल्सो वेटेड फॉर सी ओनली अ ग्लेंस ऑफ हिज फेवरेट रूलर. And who started this system? Because this system was started by ruler emperor first of all. Why did he start this system? So beta, he started this system only for broadening the acceptance of the imperial authority as part of popular faith. इसका मतलब बेटा उसने जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देने के लिए इसे शुरू किया था ताकि लोग इसमें अपना फेथ बनाए रखें और आते रहें. एंड व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? उसके बाद क्या करता था? आफ्टर दैट व्हेन ही स्पेंट एन आवर इन द बालकनी ही वेंट इन दीवाने आम and there he spent 2 hours. What was दीवाने आम? तो बेटा इसमें लिखा हुआ दीवाने आम was a big hall है
in the form of the audience hall of public, where the ordinary people gathered. Why did they gather there? Because they wanted to request something in their personal matters, or they wanted to solve the solution of their disputes, एक्सेट्रा। मतलब जो लोगों की व्यक्तिगत बातें होती थी, जैसे इसमें अभी आपने देखा ना, बिलो द बालकनी देयर वेयर आल्सो द वुमेन विद सिक चिल्ड्रन। मतलब मे बी देयर might be their personal problems, for that they would go to the दीवाने आम। मतलब दीवाने आम में लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जाते रहे होंगे, और जो एम्पर था उनकी बातों को सुनता था, उनका सॉल्यूशन करता था, ठीक ना। इन दीवाने आम मतलब एनी पीपुल, एनी पर्सन कुड गो दियर टू tell his own problems, and there he spent 2 hours. The ruler spent there 2 hours, and after that, after the solution of the ordinary people problems, the ruler also conducted the primary business of his government. समझा। दीवाने आम में ही जब वो होता था, तो लोगों की बातों को सुन लेने के बाद, जब सारी लोगों की बातों को सुन लेता था, तो वो क्या करता था? ही आल्सो कंडक्टेड द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो अपने सरकारी कामकाज की बातों को भी वहाँ पे अपने कोर्टे से सलाह मशविरा करता था, ठीक ना। और उसके बाद when he spent 2 hours in the दीवाने आम, he went to दीवाने खास, यानी 2 hours later he went to दीवाने खास। वो दीवाने खास में जाता था। What was दीवाने खास? बेटा दीवाने खास was that sacred place where the ordinary people could not go there. That was allowed to go only the courtiers, only the मतलब the close persons who with the emperor, ठीक ना। What did the emperor do there? The emperor went there to hold private audience and to discuss confidential matters। मतलब those matters which would be kept secret from the public, from the subject, those matters were discussed in दीवाने खास, and the tax officials presented their accounts in front of the ruler। जो टैक्स ऑफिस अधिकारी थे वो अपने सारी बातें, सारे अकाउंट उनके सामने ब्यौरा देते थे। द मिनिस्टर्स प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट अबाउट द एम्पायर। साम्राज्य के बारे में जो मिनिस्टर्स की रिपोर्ट हुआ करती थी उसको लोग प्रस्तुत करते थे। एंड बिसाइड इट द रेपुटेड, यहाँ पे REPUTED बेटा, ठीक ना। द रेपुटेड आर्टिस्ट्स also show those maps which were sketched by them for construction any building, यानी they showed building plans of architect which was called मीमार। यानी जो भवन निर्माण के जो नक्शे बनाते थे, वो लोग अपने तैयार किए गए नक्शे को बताते थे कि भाई यदि आपको कोई नया भवन बनाना है तो इस तरीके की उसकी डिजाइन हो सकती है। तो ये सब बातें विच वेयर necessary to keep secret from the ordinary people, those were discussed in दीवाने खास, ठीक ना। तो दीवाने खास में जो है ये सारी बातें उसकी होती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आम पब्लिक से छुपाने योग्य, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी दैट विच टाइप ऑफ ओकेशंस were सेलिब्रेटेड इन द पैलेस। तो बेटा इसमें जो है ये लिखा हुआ है आपने, द एनिवर्सरी वी आर सेलिब्रेटेड स्पेशली सम ओकेशंस इन विच द इम्पोर्टेंट ओकेशंस वेयर द एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन टू द थ्रोन, ठीक ना। आइदर एनी
हेलो, हाँ बेटा, आइदर एनी फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और एट द ओकेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन ऑफ द थ्रोन, यानी सिंहासन आरोहण का जो एनिवर्सरी वर्षगांठ मनाई जाती है उस समय, उस दिन, या कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो, जैसे ईद हुआ, शब बारात हुआ, या होली हुई। व्हाट वाज द सीन ऑफ द कोर्ट? बेटा द कोर्ट वाज फुल ऑफ लाइफ, यानी वहाँ पे जो है द होल पैलेस was decorated with different types of scented candles and other materials. It seemed at once that something was celebrating there. महल को देखने से लग जाता था कि हाँ वहाँ पे कुछ न कुछ कोई फंक्शन, एनी फंक्शन इज सेलिब्रेटेड देयर, कोई फंक्शन वहाँ पे मनाया जा रहा है, ठीक ना अच्छा। तो कौन कौन सी फंक्शन पे वहाँ पे ज़्यादा डेकोरेशन होता था? वो था एनिवर्सरी ऑफ द एक्सेशन ऑफ द थ्रोन, यानी कि जो सिंहासन की वर्षगांठ है, सिंहासनारोहण की, ईद पे, शब बारात पे और होली पे, ठीक ना। तो ये 4 ओकेशन हो गए, ठीक ना। अब ईद क्या है, होली क्या है और सिंहासनारोहण, ये तो बात आप समझ गए। व्हाट वाज द शब बारात? तो बेटा ये है, शब बारात इज द फुल मून लाइट, फुल मून नाइट ऑन द 14th शाबान। शाबान का मतलब आपके सावन रहेगा बेटा, ठीक ना। कब? द 8th month ऑफ द हिजरी कैलेंडर। समझ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि शब बारात जो ना हिजरी कैलेंडर के अनुसार, हाँ, हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने, ठीक ना, यहाँ पे लिखा ना 8 मंथ, हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने, यानी कि 14 सावन, 14वें सावन को, ठीक ना, पड़ने वाली पूर्ण चांदनी रात को मनाया जाता था। यानी हिजरी कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना और 14वां सावन, जो कि पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, ऑन दैट डे द festival of Shab Barat was celebrated. What is considered on this festival? It is considered that the god will decide the fate of the person from next day. After that night, ये मानते थे लोग कि भगवान अब उनके भाग्य को, जो अच्छे भाग्य के बारे में जो रात से शुरुआत करेंगे, एंड ऑल द सिंस वुड बी फॉरगिवन बाय गॉड ऑफ द पर्सन्स, यानी लोगों द्वारा जितने भी पाप किए गए हैं उस रात को भगवान सारे के सारे पाप उनके माफ कर देंगे। इट वॉज बिलीव्ड, दैट इज वाई दे सेलिब्रेटेड द शब बारात विद लाइटनिंग एंड विद फायरवर्क्स। लोग जो है वो प्रकाश जलाते थे, पटाखे प्रकाश करते थे, पटाखे जलाते थे, आदि आदि, इन सब चीज़ों को शो करके वो इसे मनाते हैं, ठीक ना। एंड विच वर द अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स? तो बेटा यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द लूनर एंड सोलर कैलेंडर, यानी कि चंद्र महीने के आधार पे और सौर महीने के आधार पे, ठीक ना, 2 बार हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लूनर, अकॉर्डिंग टू द लूनर एंड सोलर कैलेंडर, द बर्थडे ऑफ द रूलर वॉज सेलिब्रेटेड, यानी सम्राट का जो है जन्मदिन लूनर और सोलर कैलेंडर के अनुसार 2 बार मनाया जाता था, तो 2 ये हो गए। एंड द थर्ड वाज द नवरोज फेस्टिवल। व्हाट वाज नवरोज? बेटा इट वाज द फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू द ईरानियन न्यू ईयर, यानी कि फारसी नववर्ष के दिन। हाँ, कौन सा ये होता था? ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब बेटा इट वाज द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के आगमन का जो प्रारंभ होता है उस दिन से, जिसे कि जो है फारसी नववर्ष कहा जाता है, और सिंगल वर्ड में हम नवरोज कहेंगे। दिस फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड मोस्टली, ठीक ना। तो ये हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब अगला जो है जो भी पॉइंट होगा उसे हम अगले दिन सेंड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।